everyone, so welcome to my YouTube channel, and in this video we are going to see Ind AS 41 agriculture. तो आग लगा देंगे Ind AS 41 को. आफ्टर दिस वीडियो आई एम प्रिटी डैम श्योर जो भी क्वेश्चन आता है ना आप लोग कर सकते हैं. तो वी आर इवन डूइंग द क्वेश्चंस एंड ऑल्सो वी आर कवरिंग द एंटायर टॉपिक. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस Ind AS 41 है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि Ind AS 41 कौन से चीज़ को अप्लीकेबल होता है, कौन से चीज़ों को, कौन से एसेट्स को अप्लीकेबल नहीं होता है. तो फॉर एन एग्जांपल एग्रीकल्चर लैंड है. व्हाट डू यू थिंक Ind AS 41 इज अप्लीकेबल फॉर इट? नो. Ind AS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज अप्लीकेबल फॉर लैंड. ठीक है. वैसे ही अगर कोई ट्रैक्टर या कोई मशीनरी यूज़ हो रहा है एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है, इन दैट केस Ind AS 41 अप्लीकेबल होता है? नो. इवन इन दैट केस ऑल्सो Ind AS 16 इज अप्लीकेबल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. इफ यू सी bearer plants, no, bearer plants is actually covered in property plant and equipment. Okay, so Ind AS 16 is applicable there also. And the other ones like intangible assets and ROU assets, no, respect to Ind AS है, Ind AS 36, Ind AS 116 is applicable for that. अगर गवर्नमेंट ग्रांट्स के बारे में बोलना तो if government grant is received for a biological asset, ठीक है, only in that case Ind AS 41 is applicable. Otherwise if it is for something else, government grant if you have received for something else other than biological asset, then Ind AS 20 will be applicable. Now let's understand what is this biological asset. ठीक है, अगर biological asset ना living plants and living animals को biological asset बोलते हैं. ठीक है, even if that animal is dead, it is not a biological asset. When you chop off a tree, it is not a biological asset. As long as they are living, they are biological assets. Clear no? ठीक. Government grant also same. It should be received for the purpose of agricultural like living plants and animals. Only then Ind AS 41 में cover होता है. Otherwise no. Agriculture produce we will understand. Let's see, agriculture produce at the point of harvest बोल रहा. Let's understand this with the example. ठीक है. तो सो फर्स्ट एग्जाम्पल में ना शीप है. शीप इज़ अ लिविंग एनिमल. ठीक है, शीप से ना अपने को वूल आता है. ठीक है. सो दिस इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. जो वूल निकल रहा है ना शीप में से, दैट इज डायरेक्ट. यू आर चॉपिंग ऑफ दैट हेयर. ओके, सो दैट इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. ओके, सो दिस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज कवर्ड अंडर Ind AS 41. जो कारपेट बनता है ना वो वूल से, दैट इज आफ्टर फर्दर मैन्युफैक्चरिंग. तो Ind AS 41 में आता नहीं वो. ठीक है, that will become an inventory. Ind AS 2 will be applicable for this. ठीक है. So second one is dairy, that is cow. Cow will give you milk initially. At the point you remove that milk, that is the point of harvesting. Even this wool also, it is called the point of harvest. So milk is you're getting directly from the cow. That is agriculture produce. From milk, that they are after further manufacturing, they are doing after further process that they're getting the cheese. So that is not covered under Ind AS 41. Only milk is covered, cow is covered under Ind AS 41. Clear no? And then जो trees है, trees are covered under Ind AS 41 only. जो mango निकलता है ना, once you pluck that mango from a tree, it is agriculture produce at the point of harvest. There also Ind AS 41 is applicable. Okay, जो mango juice बनता है ना after further processing, that is not agriculture produce. तो ये तीनों चीज़ों को ना Ind AS 2 is applicable there. Clear no? So here it becomes an inventory and Ind AS 2 is applicable here. Till here no, it is either it is a biological asset, ये तीन biological asset है और ये तीन agriculture produce है. Okay, and let's write it properly. So this wool, agriculture produce. ठीक है, this wool, milk, mango. So these are directly, we get directly from those living plants and animals without doing any further processing. ठीक है, so that is agriculture produce. So till here no. अभी डिफरेंस क्या है Ind AS 41 को और दूसरे चीज़ों को? एर्लियर नो ऑल दिस एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ दे यूज टू रिकॉर्ड इट ऑन कॉस्ट बेसिस, बट Ind AS 41 क्या बोलता है? फेयर वैल्यू को लेके. ठीक है, सो वेन एवर यू आर रिकग्नाइजिंग और वेन एवर यू आर मेजरिंग the asset, no, you have to take its fair value less cost to sell. ठीक है, कॉस्ट के बेसिस पे नहीं होता है. सो वी विल अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो. वी विल डू क्वेश्चंस एंड इट विल बी ईजी फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड. तो व्हेन डू यू रिकॉग्नाइज? फर्स्ट कंट्रोल रहना चाहिए सर पे. फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट शुड फ्लो इनटू द एंटरप्राइज. और आपको फेयर वैल्यू और कॉस्ट मतलब रिलायबली मेजर करना, लाइक यू शुड बी एबल टू रिलायबली मेजर इट. रिलायबली मेजर करना. ठीक है, तो कब मेजर करते हैं? दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. कब मेजर करते हैं अपन एक बायोलॉजिकल एसेट को? ठीक है, इनिशियली व्हेन यू परचेज इट. ठीक है, एट दैट टाइम यू विल मेजर.
एंड देन एट एवरी रिपोर्टिंग पीरियड यू विल मेजर, ठीक है, बीच में नहीं करते, याद रख लो। अगर जब परचेस करते हैं ना तो इनिशियली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू विल मेजर द फेयर वैल्यू एंड देन एट एवरी रिपोर्टिंग पीरियड, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। क्या मेजर करते हैं? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। आज का दिन उसका फेयर वैल्यू कितना है एंड देन फ्यूचर में अगर सेल करे तो कितना कॉस्ट होता है, यू विल रिमूव दैट कॉस्ट फ्रॉम द फेयर वैल्यू एंड रिकॉग्नाइज इट, दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इवन फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑल्सो, क्लियर नो? वी विल चेंज द कलर, यस। तो ये एक इलिस्ट्रेशन है, ICA का इलिस्ट्रेशन है। सो इफ़ यू सी ही इज सेइंग ही बॉट 250 कैटल फॉर 13,750, मतलब 13,750 डिवाइडेड बाई 250 करे तो पर कैटल आ जाता 13,750 डिवाइडेड बाई 250, यू विल गेट 55 रुपीज़ पर कैटल। दोज आर 3-year-old ऑन 1st April, ठीक है। नाउ ऑन 1st April एज्यूम दिस 13,750 एज इट्स फेयर वैल्यू, तो एट दैट वैल्यू यू विल रिकॉग्नाइज। नाउ ऑन 31st March इफ यू सी दी 3-year-old का ना 60 हुआ एंड 4-year-old का 75। सो यहाँ पे पूरा एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में एज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो जब 1st April को अगर 3 साल है तो 31st March को वो 4 years का बन जाता। सो हियर इफ़ यू सी फेयर वैल्यू ऑफ 3-year-old cattle is 60 rupees. 3-year-old cattle at the beginning of the year was 55 से लेके वो 60 बन गया, क्या? 3-year-old cattle का। बट इफ़ यू सी ऑन 31st March इट विल बिकम 4 years, ठीक है। 4-year-old का ना इट इज़ 75 ना, ठीक है। सो यहाँ पे 2 चेंजेस हुए, एक प्राइस का चेंज हुआ एंड देन एक फिज़िकल का भी चेंज हुआ, ठीक है। 3 साल से वो 4 साल को बढ़ गया और एक 3 साल का ही प्राइस भी चेंज हुआ। प्राइस कितना चेंज हुआ? इफ़ यू सी फ्रॉम 55 इट बिकेम 60, तो 5 रुपये का इंक्रीज़ हुआ यहाँ पे, 5 रुपये। फिज़िकल कितना चेंज हुआ? 15 रुपीज़ हुआ, ठीक है। 60 से लेके 75, मतलब 75 माइनस 60, ठीक है। सो दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि प्राइस चेंज कितना हुआ, फिजिकल चेंज कितना हुआ, बिकॉज इट कैन कम अप इन MCQs। सो या यू विल बी रिकॉग्नाइजिंग दिस एट दिस वैल्यू, ओके। ऑन 31st March 2022 को उसका फेयर वैल्यू है 75 रुपीज़, बट वो 75 रुपीज़ में 2 ब्रेकअप है, ठीक है। एक प्राइस चेंज है एंड देन एक फिजिकल चेंज है, पूरा देखे तो 20, तो अपने को स्टार्टिंग में है 55 बट देन एंडिंग में 75। दिस 20 का ब्रेकअप ये है 5 and 15। I hope you understood. Please see for presentation, no, please see the ICA answer once. अभी यहाँ आने के बाद परचेस 100 sheeps फॉर, देखो ये 1 दिसंबर को परचेस कर रहा हूँ ना, कितना 5 lakhs पे करा, 1 2 3 4 5 एंड देन ट्रांजैक्शन प्राइस 2% भी पे करा, ठीक है। तो बायोलॉजिकल एसेट आ गया एंड देन टू बैंक में से पैसे भी गए, ठीक है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट बोल रहा है 2%, ठीक है। सो ऑन 31st March इतना ट्रांजैक्शन कॉस्ट विल बी पेड बाय द सेलर, दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। 5 lakhs के ऊपर 2% डाले तो 10,000 मोर। सो बायोलॉजिकल एसेट 5,10,000, बैंक में से भी 5,10,000 गया। सो दिस वन वी यूज टू डू इट अर्लियर बट नाउ इट इज़ नॉट लाइक दिस, यू नो, यू हैव टू कंसिडर द फेयर वैल्यू, ओके, ठीक है। तो इफ़ यू सी परचेज्ड एट 5 lakhs, ट्रांजैक्शन कॉस्ट पेड इज़ 2%, ठीक है। दैट इज़ नॉट मोर इम्पोर्टेंट, फेयर वैल्यू लेना, कंसिडर फेयर वैल्यू टू बी, वेयर इज माय वीडियो, ओके। सो या तो कंसिडर फेयर वैल्यू टू बी 5 lakhs ओनली, उसमें से ना फ्यूचर सेलिंग कॉस्ट निकाल देना, 2% बोल रहा है तो 10,000 निकाल देना, तो यू विल रिकॉग्नाइज इट एट 4,90,000 करेंटली एट प्रेजेंट। तो बायोलॉजिकल एसेट 4,90,000 डेबिट करते हैं बट बैंक में से क्या 5,10,000, ठीक है। यहाँ पे इनिशियल लॉस है कितना 20,000 रुपीज़ का, ओके, ठीक है। अभी ईयर एंड को आएंगे, ईयर एंड को क्या बोल रहा है वो 6 lakhs हो गया करके बोल रहा हूँ, ठीक है। 6 lakhs हो गया करके बोल रहा, तो ईयर एंड में फिर से अपन रीमेजर करते हैं, एवरी रिपोर्टिंग पीरियड को रीमेजर करना। तो 31st March को क्या करेंगे अपन, 6 lakhs लियो,
6 लाख लिया, 6 लाख लेने के बाद 2% सेलिंग कॉस्ट बोल रहा हूँ, ठीक है। 6 लाख माइनस 2%, 5,88,000, उसमें से ऑलरेडी 4,90,000 अपन रिकॉग्नाइज कर दिए, तो 98,000 बढ़ गया इस बार। तो बायोलॉजिकल एसेट को 98,000 से बढ़ाओ, टू P&L अकाउंट को क्रेडिट कर दो, गेन ऑन फेयर चेंज इन फेयर वैल्यू करके 98,000। क्लियर नो? आई होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, ये देखो काफ है ना, नाउ जो काफ है इट इज़ लाइक रिप्रोडक्शन, ठीक है। अगर अपने पास काउस है पहले, तो एक काफ को इट गेव बर्थ टू ए काफ, सो नाउ दिस विल बी ट्रीटेड एज रिप्रोडक्शन, ठीक है। अभी 31 मार्च को इट्स तो नहीं होते ना, बिकॉज वी आर मेजरिंग द फेयर वैल्यू ऑफ सच बायोलॉजिकल एसेट एट द रिपोर्टिंग पीरियड, ठीक है, और एट द टाइम व्हेन वी परचेज इट। बट यहाँ पे तो वो यहाँ पे बॉर्न हुआ, तो in case of this calf, no, you will not remeasure it when it is born, but whatever the fair value is there, no, you will take that into P&L account, ठीक है। you will only measure it at the end of reporting period, remember that. Okay, government grants, as we already discussed, no, government grants should be related to biological asset only, that is living plants and animals, ठीक है। ओनली देन इंड एस 41 इज अप्लीकेबल, अदरवाइज इंड एस 41 इज नॉट अप्लीकेबल। तो बायोलॉजिकल एसेट ना, सो हियर यू नीड टू अंडरस्टैंड इज बायोलॉजिकल एसेट व्हेन यू परचेज इट, उसका फेयर वैल्यू मालूम होना है। अगर फेयर वैल्यू मालूम नहीं है, देन यू विल गो एंड डू इट एज पर कॉस्ट बेसिस, ठीक है। अगर कॉस्ट में रिकॉर्ड करें ना, इंड एस 20 अप्लीकेबल हो जाता, देयर इज नो क्वेश्चन, ओनली you bought any biological asset and you are measuring it at cost because your fair value is not reliable, ठीक है। इन दैट केस नो इंड एस 20 लगा दो, एज पर इंड एस अकाउंटिंग कर देना। बट क्या है, ये फेयर वैल्यू है, यू आर यूजिंग फेयर वैल्यू नो, बायोलॉजिकल एसेट परचेस करें, फेयर वैल्यू के हिसाब से उसको मेजर कर रहे हैं, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। तो देर आर टू थिंग्स, वेदर गवर्नमेंट ग्रांट दैट यू हैव रिसीव्ड इज कंडीशनल और अनकंडीशनल, ठीक है। अगर कंडीशनल है, यू विल रिकॉर्ड इट इन P&L अकाउंट ओनली व्हेन द कंडीशंस आर मेट, ठीक है। अगर इट इज़ अनकंडीशनल, then you will recognize it only when the government grant is receivable, that time you will record it into P&L account. I hope this you understood, it's easy actually. Condition है तो once conditions are met, you will recognize in P&L, all the conditions are met, ठीक है। whenever you meet that condition, even if you are meeting that conditions after 3 years, you will recognize that government grant in P&L account at the end of 3 years, ठीक है। अगर अनकंडीशनल है, देन यू विल सी वेदर द अमाउंट इज रिसीवेबल और नॉट। अगर वंस वो रिसीवेबल हो गया, देन ओनली यू विल क्रेडिट इनटू P&L अकाउंट। क्लियर? दैट्स इट। नाउ लेट्स डू दिस सम। ये बोलता है फर्स्ट दे परचेज इट ऑन 30th जून, सो 30th जून डाल देंगे अपन। 30th जून को क्या हो रहा, 1 लाख रुपी ट्रांसपोर्टेशन 1,000 हो रहा है, एंड देन दे ऑल्सो गिव द फेयर वैल्यू ऑन 31st March, दैट वी विल सी लेटर। फर्स्ट वी विल सी calculate the amount of cattle to be recognized in the books of initial recognized भी पूछ रहा, and then they at the end, तो initial recognized is when they purchase, that is on 30th June। तो first we will see 1 लाख गया, transportation cost भी हुआ 1,000, and then the company has to incur the similar transportation cost if it has to। तो at the time I'm selling, no, the similar cost होता है करके बोल रहा है 2% of the sale price, and charges 2% of the sale both from buyer and seller, okay। सिमिलर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी होता है एट द टाइम ऑफ सेलिंग, सो 2% कितना होता है 2,000, ठीक है। ये भी गया, ये भी गया, तो टोटल बैंक में से 1,03,000 गया। बट वी आर गोइंग टू रिकॉग्नाइज इट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल लीकेज रिकॉग्नाइज करते हैं, तो इसका फेयर वैल्यू कितना 1 लाख है अभी, ठीक है। दिस वन इज इट्स फेयर वैल्यू। फ्यूचर में कितना कॉस्ट होता है वो सेल करने के लिए, बोल रहा है कि इन फ्यूचर ऑल्सो यू विल इनकर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। यहाँ पे सिमिलर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इफ़ इट वे टू सेल द कैटल इन द फ्यूचर, एंड देन ऑक्शनर फी भी होता करके बोल रहा है 2,000 भी जाएगा, तो 97,000 इज इट्स फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। सो यू विल से बायोलॉजिकल एसेट 97,000 टू बैंक में से कितना गया, दिस वन पूरा 1,03,000 गया, तो देयर इज़ एन इनिशियल लॉस इन रिकॉग्निशन, दिस विल गो टू P&L अकाउंट, ठीक है। पूरा 6,000 का लॉस है। क्लियर? नाउ वी विल सी व्हाट इज़ हैपनिंग। उसका फेयर वैल्यू बढ़ गया ऑन 31st March को, नाउ वी आर ऑन 31st March,
31 मार्च को कितना हुआ फेयर वैल्यू 1,10,000 हुआ, ठीक है। सो सेम जो 1,10,000 ले लो, उसमें से इफ़ यू आर सेलिंग इट इन द फ्यूचर 1,000 ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है, एंड देन 2% 1,10,000 के ऊपर 2% दैट इज़ ऑक्शनर फी 2,200, हटा दो उसको। सो दिस प्लस 1,000 माइनस 1,10,000 दैट कम्स टू 106,800, ठीक है। ऑलरेडी कितना रिकॉग्नाइज करे अपन, इतना। अभी कितना रिकॉग्नाइज करना है, इतना। सो यू विल से बायोलॉजिकल एसेट टू गेन, कितना गेन हुआ वी विल सी 106,800, 106,800 माइनस 97,000 डन। सो 9,800 गेन हो रहा है, दैट यू विल डेबिट टू biological asset and gain will go to P&L account. I think that is it about it. 2 journal entries also we have shown. We are good. That's it. Clear. Now let's see this question. This question is important from exam point of view also. Just make sure that you are practicing this question again after the class. चलो बोलता है क्या, बैलेंस शीट भी करो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी करो, ठीक है। सो स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट फर्स्ट, ठीक है। इनकम्स, एक्सपेंसेस। तो प्रेजेंटेशन के लिए एक बार ऐसे बुक देख लेना, मोस्टली द प्रेजेंटेशन इज़ लाइक दिस ओनली। बैलेंस शीट भी कर देंगे एक साथ, यहाँ पे बैलेंस शीट। ओके, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लैंड, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंड AS 16 इज एप्लीकेबल देयर, ठीक है। डायरेक्टली इट विल गो टू PPE, लैंड करके लिखो 50 lakhs, दैट विल बी इन योर बैलेंस शीट, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग। ही परचेज 200 डेयरी कॉज ऑन फर्स्ट, 2-year-old के 10 lakhs का रुपीज़, ठीक है। ही परचेज इट ऑन 1 April, ओके। व्हाट दे आर आस्किंग, वो लोग अपने को बैलेंस शीट एट ईयर एंड का बताओ करके बोल रहे हैं। सो यू डोंट हैव टू शो दिस 10 lakhs, बट रिमेंबर, सो दे रिसीव्ड अ ग्रांट ऑफ 1 million टुवर्ड्स एक्विजिशन ऑफ काउस। देखे तो वो लोगों को ग्रांट मिला है, द ग्रांट इज़ नॉन रिफंडेबल, मतलब कुछ कंडीशंस नहीं है, यू डोंट हैव टू रिफंड इट। सो द एंटायर अमाउंट कैन बी क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट। रिमेंबर 1 million, यहाँ पे गवर्नमेंट ग्रांट बोल के लिखो 1 million, डन। एंड देन ये देखे तो दो एक्सपेंसेस 6 lakhs and 4 lakhs, मेंटेनेंस फॉर कंडीशन ऑफ एनिमल्स एंड ब्रीडिंग। सो दीज टू आर इनकर्ड, फॉलोइंग इज द कॉस्ट, ओके। सो 6 lakhs and 4 lakhs, done. On 1st October 100 calves were born. देखो, in the mid of the year 100 calves were born. There were no other changes in the number of animals during the year ended 31st March 2022. As of 31st March 2022, 3,000 liters of unsold milk in inventory, sold shortly after the year end, ठीक है। चलो, नाउ ये जो 200 काउस है ना, वो कितने साल के थे, 2 years के थे, ठीक है। बट ईयर एंड तक दैट विल बिकम 3 years, ठीक है। नाउ इफ़ यू सी दिस इज़ 3 years, 3 years ओल्ड काउ, 31st मार्च को उसका वैल्यू है 5,500, राइट। नाउ सीधा लेके जाओ, क्या है वो, कितने 3 years का काउ, राइट, या 3 years काउ, कितने 200 थे, उसका वैल्यू है 5,500, राइट। 200 डेयरी काउस, उसका वैल्यू है 5,500 एज ऑफ 31st मार्च। इफ यू सी इट इज़ पे वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, ठीक है। डायरेक्ट 5,500 से मल्टीप्लाई कर दो। सो 200 into 5,500, that comes up to 11 lakhs. But if you see, he purchased, initially he would have recognized this 10 lakhs, no, in the books. As on 1st April, no, he would have recognized this, because we are preparing balance sheet as of 31st March.
वी आर राइटिंग 11 lakhs बिकॉज दैट इज़ द फेयर वैल्यू. 5500 जो है ना वो 31 मार्च का है. ठीक है, इनिशियली वो 10 lakhs रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ, तो देर इज़ एन इंक्रीज इन 1 lakh, तो दैट 1 lakh विल गो टू P&L अकाउंट. ठीक है, यहाँ पे चले जाएगा वो इंक्रीज इन फेयर वैल्यू. 2 years का मतलब 3 years वाला, राइट, 3 years का होगा. चलो अभी और एक क्या हुआ यहाँ पे, 100 calves बॉर्न हुए. ठीक है, सो अभी देखो 1 October को इफ़ इट इज़ बॉर्न बाय 31 March दैट विल बिकम 6 months ओल्ड. देखो 6 months ओल्ड का काफ का 1300. ठीक है, सो 1300, व्हाट डू यू से दिस वन, 6 months काफ. ठीक है, कितने बॉर्न हुए, 100 या 100 काफ्स हुए बॉर्न, उसका फेयर वैल्यू है 1300. फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल. ओके, यहाँ पे 100 इंटू एक का 1300. ठीक है, तो दैट विल कम टू दिस मच. सो सिंस काफ का जो भी है यहाँ पे डेबिट गिरता है 6 months काफ, एंड देन द एंटायर क्रेडिट विल गो टू P&L अकाउंट. ठीक है, सो दिस इज 6 months काफ डन. अभी यहाँ पे इन्वेंट्री एक है 3000 liters अनसोल्ड, राइट. व्हाट यू विल डू, यहाँ पे एक इन्वेंट्री बोल के हेडिंग डाल देना, मिल्क लिख देना. ठीक है, 3000 liters है, वैल्यू इज़ 24. इफ यू सी हियर इट इज़ द वैल्यू इज़ 24. 31 March को मिल्क का वैल्यू 3000 liters पड़ा हुआ है, तो उसको भी ले लो. 3000 इंटू 24 दैट विल कम टू 72,000. क्लियर नो. यहाँ पे डाल देना इन्वेंट्री मिल्क का, वहाँ पे डेबिट हुआ एंड देन P&L में क्रेडिट होता है वो 72,000. ओके, नाउ ऐड ऑल दिस, reduce these two from that, you will get profit or loss. So let's do this 1 lakh plus 1,30,000 plus 72,000 minus 6 lakhs minus 4 lakhs 302, and then this is your balance sheet. This is your balance sheet, right? Let's check once. I just want to check the answer once. Yeah, 302 आंसर वो करेक्ट है, एंड देन दिस इज ऑल्सो करेक्ट. दैट्स इट गाइस. एक बार नोट्स टू अकाउंट्स अच्छे से देख लेना. इसके नोट्स हर एक का नोट्स लिखना पड़ता है सेम, यू नो, व्हाटएवर वी हैव डन उसका नोट्स भी लिख